Hello students, in this video we are going to cover chapter number 13 of your English course book, that is The Heart of the Tree. The Heart of this Tree, written by Henry Kyler Bunner, is a 3-stanza poem that is separated into sets of 9 lines. Each of the stanzas follows a particular rhyme schemes, that is AB, A, BB, CC, AA, AD, A, DD, EE, AA, AF, A, FF, GG, AA. A is used again and again in all the stanzas because the rhyming A is repeating in all the 3 stanzas at the same place. That is first line, third line and last 2 lines. First line, third line and last 2 lines. So it is used as A. Okay. Otherwise, the rhyming pattern is AB, ABB, CC, AA. Okay. So the poet also uses a technique to craft a sense of continuity in the poem, the repetition of the first lines of each stanzas. Poet is using here repetition यहाँ पे use हुआ है, ठीक है, and he is using the first line of the stanza in all 3 stanzas. सभी stanzas जो इसमें 3 stanzas हैं, इन तीनों ही stanzas में जो फर्स्ट लाइन है वो सेम है, ठीक है, एंड द लाइन इज व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री. एक्चुअली ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन एंड द होल पोएम इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो this line is again and again repeated to maintain a continuity in the poem in all the 3 stanzas, that he is talking about the same thing in all the stanzas. Okay. The poem begins with the speaker asking the most important question of the poem. What does it mean to plant a tree? ठीक है, हम trees तो plant करते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है? Why do we plant a tree? This is the question the poet is asking, and in the whole poem, this question is being answered. The following lines do their best to answer this question. The speaker comes to the conclusion that trees are planted with only the best intention in mind. They are like monuments to heaven and homes for mother birds who swing in the twilight. ठीक है, तो जो trees होते हैं वो बहुत ज़्यादा beautiful होते हैं. Even they are beautiful like heavens. They look like heavens. They are monuments to heavens. ठीक है, and they are like home to mother birds who sing in the twilight. He also describes them as being a path to immortality. वो साथ ही साथ ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि ट्रीज को लगाना एक तरह से अपने आप को इमॉर्टल करना हुआ. जैसे कि हम जो ह्यूमंस होते हैं मॉर्टल होते हैं, वी आर ऑन द अर्थ एंड वी आर गोइंग टू डाई समडे. ठीक, किसी ना किसी दिन तो हमको हमारी डेथ होनी ही होनी है और हम यहाँ से चले जाएंगे. बट प्लांटिंग अ ट्री कैन बी अ पाथ फॉर अस टू बी इमॉर्टल. ठीक है, ट्री प्लांट करना एक तरीके से हमारे लिए एक पाथ हो सकता है, एक तरीका हो सकता है जिसके थ्रू हम अपने आप को इमॉर्टल कर सकते हैं, अमर कर सकते हैं हमेशा के लिए. वन हु प्लांट्स अ ट्री इज अस्योरिंग दैट दोज इन द फ्यूचर हु अप्रिशिएट इट. ठीक है, जो ट्री को प्लांट करता है वो उसको कभी ना कभी फ्यूचर में कोई ना कोई अप्रिशिएट जरूर करेगा, और जब वो उसको अप्रिशिएट करेगा तब वो उसको थैंकफुल होगा उसके लिए, और वो इस तरीके से हमेशा इस ट्री के थ्रू जिंदा रहेगा, अमर रहेगा. In the final lines, the speaker comes to his final conclusion that the planting a tree is done only for the civic good of a community. ठीक है, और साथ ही साथ लास्ट में फाइनल लाइंस जो हैं इस पोएम के, उसमें पोएट ये कंक्लूड करते हैं कि जो प्लांटिंग ऑफ ट्री है ये सभी के लिए अच्छा है. इट इज़ गुड फॉर ऑल. ठीक है, इट इज़ गुड फॉर द सोसाइटी इन कॉमन, इन जनरल. ठीक है, तो इट इज़ गुड फॉर द सिविक, इट इज़ गुड फॉर द civilization, it is good for humanity and for the community. Okay, this is what the poet is trying to say with this poem. Okay, so we will see the lines one by one and we will understand it, what the poet wants to say in exact, and how he is answering this question, that what does he plant who plants a tree. Okay, so let's go to the poem. Okay, we are at the poem. This is the picture of Henry Kyler Bunner. He was born in 1855 and 1896 was the date
or year in which he died. Okay, so we'll go straight to the poem. This is the poem. These are the lines. The first one is first stanza, second stanza, and the last is third stanza. You can see the rhyming pattern as I have said. It is A, B, A, B, B, C, C, A, A, and the rhyme pattern repeats. And you can see the first line of the poem is repeating in all the three stanzas. Okay, so now what does he plant who plants a tree? He plants a friend of sun and sky. He plants the flag of breezes free, the shaft of beauty towering high. He plants a home to heaven and I, for song and mother a croon of bird, in hushed and happy twilight heard. The treble of heaven's harmony, these things he plants who plants a tree. Okay, so in the first line it is question itself कि what does he plant who plants a tree. ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि वो जो ट्री लगाता है वो असल में क्या प्लांट करता है, what he plants actually. ठीक है, तो पोएट यहाँ पे बेसिकली पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि what are the things that a planter plants. ठीक है, पॉसिबिलिटी, possibilities that the planter plants. ठीक है, जब एक प्लांटर प्लांट लगाता है, ट्री लगाता है, तो वो साथ ही साथ क्या क्या चीजें प्लांट कर रहा होता है. ठीक है, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग एक्चुअली, कि ये सब चीजें वो बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं. सो नाउ the second line, he plants a friend. From the second line itself he started answering the question. वो खुद ही क्वेश्चंस के आंसर्स देना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो जो चीज़ें उनको लगती हैं कि एक ट्री को लगाने से होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो बताते हैं. तो द सेकेंड लाइन itself he says he plants a friend of sun and sky. He says that the trees are the friend of sun and sky. He is not the friend of the planter. वो जो ट्री है वो प्लांटर का फ्रेंड नहीं है. ठीक है, वो असल में सन और स्काई का फ्रेंड है. क्यों सन और स्काई का फ्रेंड क्यों है? क्योंकि ट्रीज को बहुत सारे हेल्प मिलते हैं सन और स्काई से. ठीक है, सन और स्काई की वजह से ही ट्री को बहुत सारे हेल्प मिलते हैं. ट्री ग्रो कर पाता है, ट्री अपने फूड को प्रिपेयर कर पाता है, जैसे कि आप फोटोसिंथेसिस अपने साइंस में पढ़ा होगा. सो इस वजह से वो ट्री जो है वो सन और स्काई के लिए से या बोल सकते हैं सन और स्काई के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज्ड है, उसको उसके ऊपर बहुत वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल है. तो इस वजह से ट्री जो है वो सन और स्काई का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है. ठीक है, तो प्लांट जो है वो सन और स्काई का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है. एंड ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री. ही प्लांट्स द मतलब यहाँ पे जो भी इंसान है जो ट्री को लगाता है वो असल में क्या करता है, वो एक फ्लैग लगाता है जो कि ब्रीज है. ठीक है, जो फ्री ब्रीजेस का एक फ्लैग है. यहाँ पे फ्लैग का मतलब बेसिकली है लीव्स और द ब्रांचेस फुल ऑफ ग्रीन लीव्स ऑफ द ट्री. ठीक है, तो ट्री के जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, हवा को साफ करते हैं. दे क्लीन द एयर. ठीक है, और इस वजह से जो हवा है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है. दे आर इन जॉय. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस जॉय इट इज सेड हियर कि दैट दे आर प्लांटिंग एक्चुअली व्हाट, दे आर एक्चुअली प्लांटिंग द फ्लैग ऑफ ब्रीज इज फ्री. ठीक है, जो साफ सुथरे हवा होते हैं उनको वो प्लांट कर रहे हैं. ठीक है, तो जब वो ट्री को प्लांट कर रहे हैं तो साथ ही साथ वो एक फ्रेश एयर को भी प्लांट कर रहे हैं. तो दिस इज व्हाट द पोएट इज हियर सेइंग इन द थर्ड लाइन कि दे आर एक्चुअली प्लांटिंग व्हाट, द फ्रेश एयर्स. अब एयर जो हवा है, साफ सुथरी हवा जो है उसको वो प्लांट कर रहे हैं. ठीक है, तो एक्चुअली दे आर प्लांटिंग द फ्रेश एयर. द shaft of beauty towering high, he plants a home to heaven and I. So the beauty, this is the beauty एक्चुअली. ठीक है, ये जो ब्यूटी है एक मॉन्यूमेंट की तरह है, ये एक महल की तरह है. ये ब्यूटी बहुत ही बड़ा है. इट्स वेरी हाई, इट इज़ वेरी हाई, इट इज़ टावरिंग हाई टू द हेवन. वो इतना ऊपर जा रहा है, इसकी जो ब्यूटी है वो इतनी ऊपर तक जा रही है कि उसको वो ऐसा लगता है कि वो हेवन को
उसकी खूबसूरती जो है वो हेवन की खूबसूरती से कंपेयर की जा सकती है, वो हेवन की खूबसूरती तक उसकी खूबसूरती पहुंच रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है। अनाई का मतलब होता है नियर। ठीक है, अनाई मीन्स नियर, नियर मतलब पास। ठीक है, क्लोज बाय। सो तो जो इस ट्री की जो ब्यूटी होती है वो हेवन की ब्यूटी के बराबर आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, और ये जो ट्रीज होते हैं ये हेवन के लिए घर के समान होते हैं। ठीक है, दे आर द होम टू हेवंस। ठीक है, देन दे आर प्लांटिंग द ट्रीज फॉर होम, दे आर प्लांटिंग द ट्रीज फॉर द सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स एंड द मदर। ठीक है, तो मदर और यंग बर्ड्स जो होते हैं वो ट्रीज में ही अपना नेस्ट बनाते हैं, नेस्ट बनाकर घोंसला बनाकर उसमें रहते हैं। तो ये जो लोग जो ट्रीज को लगाते हैं वो साथ ही साथ क्या करते हैं, बर्ड्स के लिए भी ये ट्रीज लगाते हैं, उनके सॉन्ग्स के लिए वो ट्री लगाते हैं। ठीक है, जब वो क्या करते हैं, जब अपने घोंसले में बैठकर गाना गाते हैं, स्पेशली व्हेन दे आर हैप्पी एट द ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट मीन्स यू कैन कंपेयर इट विद द सनसेट एंड सनराइज। सनराइज और सनसेट का समय होता है उसको यहाँ पे ट्वाइलाइट की तरह कहा गया है। सो वो जब सनसेट और सनराइज के समय में जब वो गाना गाते हैं अपने घोंसले में बैठ के, तो वो जो समय होता है वो एक हेवन्स हारमोनी की तरह होता है। वो जो म्यूज़िक होता है वो हेवन की हारमोनी की तरह होता है, हेवन की जो मेलोडी होती है उसकी तरह होती है वो साउंड। ठीक है, तो ये अपने आप में एक हेवन का समय होता है। ऐसा लगता है कि आप हेवन को खुद ही, एक स्वर्ग को खुद ही देख रहे हो। वो जो समय होता है जब बर्ड्स अपने घोंसले में गाना गाती हैं और सनसेट और सनराइज का समय होता है, ये जो समय होता है ये अपने आप में एक हेवन के जैसा होता है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द पोएट इज हियर सेइंग कि जब कभी भी एक प्लांटर अपने एक प्लांट को, एक ट्री को लगाता है तो वो साथ ही साथ में एक हेवन जैसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करता है। एक हेवन भी अपने आप, ऐसा लगता है कि जो हेवन है, जो स्वर्ग है, वो धरती पे ही आ गई है। उस समय जब एक बहुत सारे बर्ड्स जो घोंसले में बैठे हुए हैं गाना गा रहे हैं और उस समय सनसेट और सनराइज का समय है, तो वो जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। ऐसा लगता है कि वो खुद स्वर्ग जो है वो अर्थ पे आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो प्लांटर है वो प्लांट लगाने के साथ साथ करता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट प्लांटर डू व्हेन ही प्लांट्स अ ट्री। ओके, तो लास्ट लाइन यही है, दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। तो ये सारी चीज़ें वो साथ ही साथ लगाता है जब वो एक ट्री को लगाता है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। इन द सेकेंड स्टैंजा विल सी what does he plant who plants a tree? He plants cool shade and tender rain, and seed and bud of days to be, and years that fade and flush again. He plants the glory of the plain. He plants the forest's heritage, the harvest of a coming age, the joy that unborn eyes shall see. These things he plants who plants a tree. Okay, so again the first and second stanza, the poet is again asking a question and he's answering in the next 8 lines. He plants cool shade and tender rain. ठीक है, जब वो कभी भी एक ट्री लगाता है तो साथ ही साथ वो एक कूल शेड और टेंडर रेन को भी प्लांट कर रहा होता है। ठीक है, बिकॉज जो आपको पता है कि जो अच्छी रेन होती है वो प्लांट्स की वजह से होती है। अगर प्लांट्स कम होंगे तो अच्छी रेन वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि जो पेड़ होते हैं वो कूल शेड देती हैं, गर्मी के मौसम में छांव देती हैं, जिसके नीचे आप रुक सकते हो, वेट कर सकते हो और आपको गर्मी से आप बच सकते हो। तो जो प्लांट्स होते हैं वो कूल शेड्स देते हैं, टेंडर रेन देते हैं। तो जो भी इंसान एक पेड़ लगा रहा है वो साथ ही साथ कूल शेड्स और टेंडर रेन को भी वहाँ पे प्लांट कर रहा है। ये पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं। द सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे सीड और बर्ड को यहाँ पे क्यों पोएट ने यूज़ किया है? सीड और बर्ड का मतलब है कि दे आर द फ्यूचर ऑफ द ट्री, दे आर द फ्यूचर। ठीक है, सीड और बर्ड जो हैं वो फ्यूचर हैं, बिकॉज ये जो सीड और बर्ड हैं यही कल को जाकर एक नई ट्री बनेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी आप एक ट्री लगाते हो तो साथ ही साथ आप अपने फ्यूचर को भी और ज़्यादा सर्टेन और स्ट्रांग बनाते हो। ठीक है, तो इसलिए जो भी एक ट्री इंसान, जो भी एक ह्यूमन और एक इंसान जो है वो ट्री लगाएगा तो वो साथ ही साथ एक फ्यूचर को भी उसी समय प्लांट कर रहा होता है। ठीक है, एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन। ठीक है, जो समय है
जो ईयर्स हैं, ईयर्स मतलब यहाँ पे टाइम है, ईयर्स मतलब टाइम और लाइफ यू कैन से। तो लाइफ में क्या होता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। फेड मीन्स डाउन एंड फ्लस मीन्स अप्स। तो आपके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं मतलब फेड, एंड बहुत सारी हैप्पीनेस आती है मतलब प्लस। ठीक है, तो ये जो समय होता है ये भी क्या होता है, फ्यूचर का एक हिस्सा है, ये समय का एक हिस्सा है। बट ट्रीज जो होती हैं ये इन चीज़ों को भी हमें क्या करती हैं, सिखाती हैं। दे टीचर्स अस दिस दैट किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स ऑन लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, हैप्पीनेस आती रहती हैं, बट क्या हमको उस सबको देखकर लाइफ में रुकना चाहिए? नो, बिकॉज लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे कि एक ट्री हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ट्रीज में भी कभी कभी क्या होता है, ट्रीज में भी आप देखते हो साल भर में अलग अलग फेजेस आते हैं। कभी ट्रीज के जो पत्ते होते हैं वो सूख जाते हैं ऑटम के सीजन में, फिर स्प्रिंग सीजन में नए पत्ते आ जाते हैं। तो दैट इज़ द अप्स एंड डाउन्स ऑफ अ लाइफ। ठीक है, तो ऐसे ही ह्यूमंस के लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन ट्री की तरह हमें खड़े रहना चाहिए आगे के लिए, सोचना चाहिए आगे के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ट्रीज से देखने को मिलती हैं। जस्ट लाइक ट्रीज जो हैं अपनी सीड्स और बर्ड्स हमें नीचे गिराती हैं, ठीक है, ज़मीन पे, ताकि वो अपने फ्यूचर को और ज़्यादा सर्टेन और स्ट्रांग बना सकें। ठीक है, तो उसी तरीके से हम ह्यूमंस को भी क्या करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हों। ठीक है, और हैप्पीनेस और प्रॉब्लम्स तो आते जाते रहते हैं। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन, ही प्लांट्स द फॉरेस्ट्स ऑफ द हेरिटेज, ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन। ग्लोरी मीन्स क्या होता है, ऑनर। ठीक है, ऑनर मतलब गर्व और प्राइड की चीज़ होती है। तो जो प्लेन्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो ट्रीज होती हैं वो ग्लोरी की तरह होती हैं। तो पोएट बोलते हैं कि जो कोई भी ट्री लगाएगा वो एक तरीके से प्लेन के लिए एक ग्लोरी की तरह चीज़ लगा रहा है। प्लेन्स के लिए वो ग्लोरी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, उनके लिए एक गर्व की बात है ये। ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज, वो साथ ही साथ जो फॉरेस्ट्स हैं उनके लिए एक हेरिटेज, एक इनहेरिटेंस करके जा रहा है कि ये जो ट्रीज़ हैं ये फॉरेस्ट के लिए हमेशा के लिए एक हेरिटेज होंगे, फॉरेस्ट के लिए, एक फॉरेस्ट को कभी भी ख़त्म नहीं होने देंगे। ठीक है, इन हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, कमिंग एज के हार्वेस्ट्स को भी वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या फिर लगाते हैं, प्लांट करते हैं। ठीक है, हार्वेस्ट का मतलब कि क्या है, आगे जो हम देखेंगे, आगे जो फ्यूचर में हम काटेंगे, ठीक है, या बोल सकते हैं हमें जो मिलेगा ना, वट एवर द थिंग्स दैट वी विल गेट इन द फ्यूचर। ठीक है, वो सारे चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर के हार्वेस्ट्स हैं, फ्यूचर के ऑफ कमिंग एज के हार्वेस्ट्स हैं, जो हम आज करते हैं उसका रिजल्ट हमें कल मिलता है। तो रिजल्ट इज़ द हार्वेस्ट हियर। ठीक है, तो साथ ही साथ आज ही जब हम ट्री प्लांट कर रहे हैं तब हम साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, हम हार्वेस्ट भी कर रहे हैं, है ना। कमिंग एज के हार्वेस्ट को भी प्लांट कर रहे हैं, कमिंग एज के रिजल्ट को भी प्लांट कर रहे हैं। ठीक है, और द जॉय दैट अनबॉर्न आईज शैल सी। ठीक है, और ये साथ ही साथ ये एक जॉय है किसके लिए, हमारे अपकमिंग जनरेशन्स के लिए। अनबॉर्न आईज मीन्स अपकमिंग जनरेशन्स, अनबॉर्न आईज मतलब अपकमिंग जनरेशन्स, जो आने वाली जनरेशन्स हैं, जो हमारे बाद में जो पीढ़ी आएगी वो इन पेड़ों को जब देखेगी तो वो उनके लिए कितना हैप्पीनेस वाली बात होगी, कितना जॉयफुल होगा। ठीक है, और वो इन चीज़ों को देख के काफ़ी खुश होंगे। एक तरीके से देखा जाए तो हम आने वाले जनरेशन्स के लिए एक एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर रहे हैं, उनकी हैप्पीनेस के लिए, उनकी खुशी के लिए हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर जब भी हम ट्री लगा रहे हैं तो साथ ही साथ जब हम ट्री लगाते हैं तो हम अपने आने वाली पीढ़ी के जो जॉय है, जो खुशी है, उसको भी हम प्लांट कर रहे होते हैं। तो दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। तो ये सारी चीज़ें जो प्लांट करते हैं जब हम एक ट्री प्लांट करते हैं। ठीक है, okay, the next stanza, what does he plant who plants a tree? He plants in sap and leaf and wood, in love of home and loyalty, and far-cast thought of civic good. His blessings on the neighborhood, who in the hollow of his hand holds all the growth of all our land. A nation's growth from sea to sea stirs in his heart who plants a tree. Okay, so what happens here कि जब कभी भी एक प्लांट जब हम लगाते हैं, जब कभी भी कोई एक प्लांट लगाता है तो साथ ही साथ क्या करता है,
वो सैप और लीफ और वुड के थ्रू प्लांट लगाता है। सैप मतलब क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं सैपलिंग्स, और लीफ के थ्रू भी हम कुछ प्लांट्स लगाते हैं और वुड्स के थ्रू भी हम प्लांट लगाते हैं, ठीक है। तो इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी हम क्यों लगाते हैं वो प्लांट, क्योंकि हमारा जो हमारे घर के लिए, हमारे फैमिली के लिए जो हमारा प्यार है, जो हमारी एक लव है, ठीक है, उसके लिए हम ये सारे ट्रीज़ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं। वी आर फोरकास्टिंग, हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, हम बहुत दूर के बारे में सोच रहे हैं, और हम सिविक गुड के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के, सोसाइटी के गुड के बारे में सोच रहे हैं। वी आर थिंकिंग ऑफ द सिविक गुड एंड ही इज ब्लेसिंग ऑन द नेबरहुड। और साथ ही साथ हम प्लांट कर रहे हैं अपनी ब्लेसिंग्स को जो हमारे आसपास में रहने वाले लोगों को मिलेगी। हिज ब्लेसिंग ऑन द नेबरहुड मतलब हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो हमारे नेबर हैं, ठीक है। तो हमारे जो नेबरहुड्स हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, उनकी हैप्पीनेस के लिए, उनकी खुशी के लिए हम ये प्लांट लगा रहे हैं, ये ट्रीज़ लगा रहे हैं। जब कभी भी हम किसी ट्री को प्लांट करते हैं तो साथ ही साथ हम अपने प्यार करने वाले लोगों, हमारे फैमिली, हमारे जो होम है, हमारा घर है, उसकी लॉयल्टी के लिए हम ये ट्रीज़ लगाते हैं, ठीक है। हम साथ ही साथ सिविक गुड के लिए, मतलब लोग इन जनरल कॉमन सोसाइटी के लिए हम ये ट्रीज़ लगाते हैं, हमारे आसपास में रहने वाले लोगों के लिए हम ये ट्रीज़ लगाते हैं। Who in hollow of his hand holds all the growth of all land, ठीक है। तो जब हम एक ट्री लगाते हैं तो हम सभी लैंड, मतलब अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी अपने आसपास के प्लेसेस हैं, उनकी ग्रोथ के लिए हम ये ट्री लगाते हैं, ठीक है, उनके फ़ायदे के लिए हम ये ट्री लगाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हम ट्री लगाएंगे क्या होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। A nation's growth from sea to sea stirs in his heart who plants a tree। तो जो भी एक ट्री प्लांट करता है वो पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचता है, वो पूरे सोसाइटी के बारे में सोचता है, वो पूरे लोग, ह्यूमैनिटी के बारे में, मैनकाइंड के बारे में सोचता है, ठीक है। तो जब कभी वो एक ट्री लगाता है तो वो अपने मन में, अपने दिल में सिर्फ एक ही चीज़ रखता है, सिर्फ नेशंस के ग्रोथ के बारे में सोचता है वो, ठीक है। अपनी कंट्री, अपने जिस कंट्री में वो रह रहा है उस कंट्री के ग्रोथ के बारे में सोचता है, ठीक है। और ना ही सिर्फ अपनी कंट्री, वो सी टू सी, मतलब कि एक सी से दूसरे सी, मतलब पूरे वर्ल्ड के बारे में वो सोच रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द थॉट दैट स्टर्स इन हिज हार्ट। वो ये जो पूरी सोच है ना, एनवायरनमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, नेबरहुड के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बेसिकली, तो ये जो सोच है ये उसके हार्ट में स्टर कर रही होती है, मतलब उसके हार्ट में ये चीज़ बसी हुई होती है, ठीक है, जब वो एक ट्री को प्लांट करता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, द ह्यूमंस मेक्स देमसेल्व्स इमॉर्टल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। जब कभी भी आप एक ट्री लगाते हो, जैसे कि इससे पहले वाले स्टैंजा में एक लाइन भी लिखा हुआ था, दैट अनबॉर्न आइज विल सी और शाल सी, ठीक है। तो जो अनबॉर्न आइज हैं वो हमें देखेंगे, ठीक है, अपने आने वाले जनरेशन्स जो हमारे हैं वो इस ट्री को देखेंगे। तो जब वो इस ट्री को देखेंगे तो वो याद करेंगे, वो जॉय से भर जाएंगे, खुशी से भर जाएंगे। तो ऑब्वियसली तब वो इस ट्री को अप्रिशिएट करेंगे, उस इंसान को अप्रिशिएट करेंगे जिसने उस ट्री को लगाया होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस तरीके से वी आर गेटिंग इमॉर्टल, हम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे इस ट्री के थ्रू, जो इस ट्री को हमने लगाया है। तो हम जब एक ट्री लगाते हैं तो साथ ही साथ हम खुद को इमॉर्टल भी करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इन दिस पोएम इट इज़ सेड दैट हमें ट्रीज़ लगाने चाहिए। ट्रीज़ हमारे लगाने से हम खुद को इमॉर्टल करते हैं, सोसाइटी को बचाते हैं, अपने आसपास के लोगों को बचाते हैं, लोगों के फ्यूचर को सर्टेन करते हैं और ज़्यादा सिक्योर बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम ट्री लगाते हैं तो हम एनवायरनमेंट को भी सेव करते हैं, उस एनवायरनमेंट को सेव करते हैं जो एक हेवन की तरह होता है अगर उसमें ट्रीज़ होते हैं तो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम इज़, and it's a very simple poem. I hope you all have understood it, and if you have any doubt then you can ask me in the comment section. So in this way we'll be signing off. Goodbye.